We are in our 20s, the age to chase dreams, live wild, and feel unstoppable. But instead, we feel stressed, tired, and even falling sick like we are in our 50s. College students are now talking about blood pressure, anxiety, and burnout more than their assignments. What's happening to us? Why are we, the youngest generation, feeling sick so early? Today, I am sitting down with Dr. Kushal Markande, a highly respected general physician who has been helping many youngsters to know the impact of their modern lifestyle on their health. Sir, welcome to the podcast. It's really an honor to have you with us today. Sir, this generation has it all. उनके पास स्मार्टफोन्स, बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ है, बट फिर भी दे फील स्ट्रेस्ड, बोर्ड, दे हैव एंग्जाइटी, मेनी डिजीजेज लाइक डायबिटीज़, पीसीओएस. जो डिजीज़ पहले 50s की एज में होती थी वही डिजीज़ आज यंगस्टर को हो रही है. सो सर, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाई यंग इंडिया फॉलिंग सिक सो अर्ली? Thank you so much for having me on your show, by the way. It's an honor to be here. Addressing your question, I feel that younger generation of India is behind a mob psychology. So, जिसे हम हिंदी में भेड़ चाल कहते हैं. So, if one person achieves something, there will be 50 behind him trying to achieve that. And that creates a stress on our own mind. That might not be acute. That will be a chronic stress. So say for example, अगर आपके परिवार में कोई आज डॉक्टर बन गया, तो आपके परिवार के आसपास वाले कम से कम नहीं तो जो आपके रिलेशंस में हैं, आपके नेबरहुड में हैं, वो कहेंगे कि हमारा बेटा क्यों नहीं बन सकता. द शर्मा जी का लड़का साइकोलॉजी इज ड्राइविंग मैनी पीपल टू स्ट्रेस nowadays. Number one. Number two, the shortcut routes. We want everything in a shortcut. That's true. Even we want sometimes. मेरे को भी कभी कभी लॉन्ग कट्स नहीं मंजूर होता है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई टर्न माई आई ब्लाइंड टूवर्ड्स द लॉसेज विच आई एम गोइंग टू इनकर वाइल टेकिंग दैट शॉर्टकट्स. सो वी वॉन्ट, नंबर वन, स्नैक्स और फूड्स विच आर रेडी, झटपट. Okay, then we want entertainment which is ready, chatpat. We want exercises which are burning our calories, chatpat. Okay, we want everything in a minute. That's why I think these applications like Zomato or Swiggy are turning billions of profits nowadays. So I think in short that summarizes it. अगर हम जंक फूड की बात करें तो आजकल जंक फूड बहुत ज़्यादा चल रहा है. जैसे जो आजकल की जनरेशन है, व्हेन दे फील बोर्ड, लोनलीनेस, तो उनके लिए जो कंफर्ट फूड होता है दैट इज़ जंक फूड. लाइक मिडनाइट स्नैक, मैगी, कोल्ड ड्रिंक, देन वन और फिर एक और ऐसे करके वो बहुत सारा जंक फूड कंज्यूम करते हैं. तो सर, ये जंक फूड कैसे हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है? क्या हमारी बॉडी में इम्पैक्ट देता है? Junk food, okay, why do we call it junk? Yes, sir. Number one, because it doesn't provide you with any nutrition. So to our body, if a thing is not providing us any nutrition, that thing becomes junk immediately. Okay, that is the basic definition of junk food. Now, rather than calling it junk, I'll call it fast food. So say for example, I am having a burger, okay, which is a classical example of junk food. Now let's dissect this burger in different parts. Okay, so there is a bun. What is a bun made of? A bun is made of maida. Yes. Now let's break this maida up. Okay, in fact maida is the most broken food. I'll explain it how. Say for example, you take a wheat grain, okay, a small wheat grain. You have seen it, right? Yes. Okay. Now you break it further. Okay, what you get it? What is the coarsest particle from a wheat grain which is edible for a human being? That becomes a dalia, porridge. Okay, that is easiest to digest. That is why many Indian customs include porridge
in the Annaprashan of a child because it is easiest to digest. So when a baby is 6 months old, we start giving him Dalia. dalia. Okay, so dalia is the one. Okay, now you said bun. So the dalia is being replaced by this bun. Why? Because it doesn't need any processing. You just buy a bun and you consume it. So it's a fast food. Now dalia versus bun we'll compare. Dalia is high in fiber but needs time to cook. It cannot be made in an instant. Bun is very low in fiber, is very hard to digest, but can be consumed as it is the moment you buy it. So again, shortcut Yes. is being preferred over long cut. Now you come little lower. You make the dalia even more finer. So what do we get is a semolina or suji. That is less easier to digest than dalia but better than wheat flour. Okay, so आटे से सूजी बेहतर, सूजी से दलिया बेहतर. अब आप आटे पे आ जाओ. सूजी भी हम बच्चों को खिलाते हैं, है ना. जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो सूजी की खीर बना के खिलाती थी मम्मी, तो वो भी आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है. अब आते हैं हम आटे में. आटे के अंदर फाइबर होते हैं जिस वजह से होल व्हीट फ्लावर को हम लोग कंज्यूम करते रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस. अब हमने उसके अंदर भी और रिफाइनमेंट लाने की कोशिश करी ताकि हमें आटा ज़्यादा गूंदना ना पड़े अपने घरों में. तो हमने क्या करा, हमने आटे को छानना शुरू कर दिया. आटे को छानना शुरू कर दिया तो ऊपर क्या बचा, छानस. छानस is called wheat bran, and believe me, any of your user, any of your subscriber, any person who is watching this video right now, ठीक है, the moment he searches the benefits of wheat bran in our food, they will be surprised and shocked to see that it has been labeled as a superfood. So हमने क्या करा, छानस को आटे से छाना और हमारा सुपर फूड व्हीट ब्रान गया गाय के पास, है ना जी. सो ताकि हमें आटा गूंथने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और हमारी रोटियां सफेद सफेद सुंदर सुंदर फूलती हुई, वो दिखाते ना एडवर्टाइजमेंट में फूलती हुई रोटियां, वैसी बने. क्योंकि छानस से बनेंगी तो उसके अंदर फाइबर होगा. फाइबर रोटी को जोड़े रखेगा, तो आपकी फाइबर वाली रोटी इतनी फूलेगी नहीं, इतनी सफेद नहीं होगी, एंड यू विल हैव टू च्यू इट. मेहनत करनी पड़ेगी ना. देन अब आप व्हीट फ्लोर को और पीस दो. व्हाट कम्स इज मैदा, which has zero fiber, which is very high glycemic index, and which is the hardest to digest. ठीक है, and this maida is used to make your bun. ठीक है. Then comes over the patty of the burger. Patty of the burger is deep fried at very high temperatures of oil, so much that all essential oils from all essential fats from that particular oil are murdered, and then your patty comes with very high spices, with poor quality of potatoes, those are also without any fiber and ultra processed, and those are stitched together with your synthetic mayonnaise and synthetic tomato ketchup and served with you with unwashed raw vegetables, that is called lettuce. a very common source for neurocysticercosis. दिमाग के कीड़े जो होते हैं ना, Yes. वो बिना धुली पत्ता गोभी या लेट्यूस के जो पत्ते उसमें बर्गर में डाले जाते हैं उससे फैलते हैं.
एक एनर्जी ड्रिंक या एक जंक मील लेने से भी हमारा लीवर और हार्ट हेल्थ पे इफेक्ट होता है। Okay, energy drink. Energy drink, why is it called energy drink? Because it provides you instant energy. आपको लगेगा आप मान लो आप पूरी तरह से ड्रेन्ड हो, आप एक एनर्जी ड्रिंक लो, एकदम इंस्टेंट रश ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी एंड यू फील लाइक फुल्ली चार्ज्ड नाउ। ओके, दैट इज व्हाई वो गैटोरेड की एड में आदमी को दौड़ता हुआ दिखाते हैं ना, बट दे डोंट शो द अदर साइड ऑफ द कॉइन टू यू। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं मैडम। So once you are flipping a coin, you will either get head or tails. If tails is down, you will not be able to see it. But let's see it. So once your sugars are spiked, your pancreas come into action. Oh my God, I have got a lot of sugar in my blood. I have to bring it down. Because pancreas का काम क्या है? इंसुलिन बनाएगा, ब्लड शुगर को कम करेगा। अब क्या होगा कि आपके ब्लड शुगर के ऊपर इंसुलिन एक्ट करनी शुरू करेगी और जल्दी जल्दी उसे सेल्स के अंदर भरेगी, स्टोर करेगी। ठीक है, मसल तू भी ले, लिवर तू भी ले, हार्ट तू भी ले, सब कुछ लो, ब्लड की शुगर थोड़ी सी कम करी जाए। ठीक है, अब भैया लिवर तो पहले से ही सैचुरेटेड। लिवर ने कहा मैंने तो अपना ग्लाइकोजन पहले से भर रखा, मेरे पास जगह नहीं है भाई शुगर की और। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो शुगर है दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट बाय अ प्रोसेस नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोज जो है वो किसी भी चीज में कन्वर्ट कर दी जाती है जस्ट फॉर स्टोरेज। अब फैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोरिंग द एनर्जी इन योर बॉडी फॉर टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो जो एक्सेस ग्लूकोज आपने अपनी एनर्जी ड्रिंक से कंज्यूम करी, ठीक है, अगर आप उसे कंज्यूम नहीं कर रहे हैं और आपके बॉडी उसे स्टोर करने जा रहा है, सो इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट। और ये फैट कहां पे स्टोर होगा? लिवर में। इसी वजह से मैं अभी गारंटी के साथ कह सकता हूं, जितने लोगों को लगता है कि वो फिट हैं, ठीक है, आज मैं चैलेंज देता हूं आपके इस शो के माध्यम से, जाएं अपना एक अल्ट्रासाउंड कराएं और अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर से पूछे कि डॉक्टर साहब क्या मुझे फैटी लीवर है। 80 से 90% लोग कहेंगे हाँ। ये फैटी लीवर करवाता है नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग नैश कहते हैं, और ये नैश ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम को आगे बढ़ाता है। तो इससे आपको डायबिटीज हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, बीपी बढ़ सकता है और क्या क्या। तो आपकी एक एनर्जी ड्रिंक कहाँ पहुंची? Sir, today every third girl has a PCOS and PCOD and many has diabetes, obesity problem. क्या ये सारी जो डिजीज़ है वो सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से है, जंक फूड खाने की वजह से, स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से, या स्ट्रेस लेने की वजह से? और अगर हम ये अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें तो क्या ये सारी डिजीज़ेज जो है वो रिवर्स हो सकती है? आज भी जब भी मैं किसी को कुछ प्रिस्क्राइब करता हूँ या प्रिस्क्रिप्शन करता हूँ, स्पेशली इन गर्ल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम PCOS, मैं उनमें सबसे पहली चीज़ जो लिखता हूँ दैट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ PCOS टिल डेट, आप कोई भी किताब उठा के देख लीजिए। हाँ, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है जैसे मेटफॉर्मिन वगैरह हम लोग देते हैं, लेकिन पहली लाइन आज भी हर जगह पे यही लिखी रहती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लोगों को इनफर्टिलिटी हो रही है PCOS की वजह से, एक्ने बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एक्ने और इनफर्टिलिटी इन सब की वजह से डिप्रेशन बढ़ रहा है, डिजीज़ एसोसिएटेड डिप्रेशन, मेंसेस टाइम पर नहीं आते हैं, जब मेंसेस होते हैं तो इतने ज़्यादा दर्द के साथ होते हैं कि अनबियरेबल पेन हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ लाइफस्टाइल से करेक्ट करा जा सकता है। हाँ, PCOS, अब क्या क्या लाइफस्टाइल से हमारे गलत है? नंबर 1, ओबेसिटी। अब ओबेसिटी अमंग फीमेल्स इज राइजिंग लाइक एनीथिंग, especially in younger females, like in between 18 to 25 years of age, since there is very low physical output,
there is a very high sedentary lifestyle, and again like you told, junk foods, ठीक है, are taking a part in making a female obese, ठीक है, because of low metabolism. अब ऐसे में हमारे पास क्या आ रहा है, ओवरीज के अंदर भी हमारे स्ट्रेसफुल एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, जिस वजह, सॉरी एंजाइम्स शायद एक राइट वर्ड ना हो, आप इसको स्ट्रेस रिलेटेड केमिकल्स कह सकती हैं, ठीक है, वो एक्टिवेट होते हैं इन सिंपलर टर्म्स, और इस वजह से हमारी जो ब्लीडिंग की साइकिल्स हैं वो एबनॉर्मल हो जाती हैं, जिसको हम AUB कहते हैं, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीड, PCOS में बहुत कॉमन है, ये एक वजह है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको वेट लॉस करना है, आपको हेल्दियर फूड खाने हैं, ठीक है, ताकि आपकी इंसुलिन जो है वो सकारात्मक तरीके से काम कर सके जो उसे काम करना है, एंड इट डज नॉट फेस रेजिस्टेंस। फिर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, डोंट माइंड इफ आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, सो यू हैव सेड अ वेरी राइट थिंग, दैट इज स्लीप। अब स्लीप व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इज, स्लीप में क्या होता है कि हम, देयर आर टू फेजेस, वन इज अ रैपिड आई मूवमेंट फेज एंड अनदर वन इज अ नॉन रैपिड आई मूवमेंट फेज, REM और NREM। इसको मैं थोड़ा सा सिंपलर तरीके से बताता हूँ। उसमें क्या है कि हमारी बॉडी रिकैलिब्रेट करती है, हम सारा दिन अवेक, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि हम एक कंटिन्यूअस सिंपैथोमाइमेटिक सिचुएशन में है, यानी कि फाइट और फ्लाइट वाले रिस्पॉन्स में। जैसे जैसे हमारे सामने चीज़ें आती रहती हैं, हम उससे या तो लड़ेंगे या उससे दूर भागेंगे, तो फाइट और फ्लाइट। और ये जो काम है ये कौन करता है हमारी बॉडी में, कॉर्टिसोल। तो एक कंटिन्यूअस कॉर्टिसोल की पीक हमारी बॉडी में बनी रहती है। अब ये कॉर्टिसोल क्या है, कॉर्टिसोल एक तरीके का हार्मोन है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, और ये हमें फाइट और फ्लाइट वाला जो रिस्पॉन्स है उसके लिए काम देता है। अब स्लीप के दौरान क्या होता है कि देयर इज अ डिप इन योर कॉर्टिसोल लेवल्स, तो आप एक पैरासिम्पैथोमाइमेटिक फेज में जाते हो, यानी कि आपका हार्ट रेट कम होगा, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक है, और आप एक रिलैक्स्ड फेज में जाओगे, जिसे हम अगर हम मेजर करें उस रिलैक्सेशन को तो हम EEG के माध्यम से उसे कहते हैं डेल्टा वेव्स। तो वहाँ पर हम बिल्कुल रिलैक्स फेज में जाते हैं, और ये पाया गया है कि जो लोग 7 घंटे से कम स्लीप ले रहे हैं उनके अंदर ये प्रोलॉन्ग्ड कॉर्टिसोल जो है एक तरीके की इन्फ्लामेटरी, कंटिन्यूस क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस अपने अंदर चला के रखता है, जिस वजह से जितने भी ये साइटोकाइंस होते हैं, जितने भी इन्फ्लेमेशन कॉजिंग एंजाइम्स होते हैं, साइटोकाइंस केमिकल्स होते हैं, तो ये सभी हमारी बॉडी के अंदर एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस करके रखते हैं, जिस वजह से वी एज अर्लियर, बिकॉज ऑफ विच वी डेवलप डिजीजेज अर्लियर, बिकॉज ऑफ विच वी डेवलप ऑल सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस। आपने कहा शुरुआत में ही कि हम क्यों जो डिजीजेस 50 साल की उम्र में होती थी वो अब जल्दी होने लग गई। दिस इज द रीजन, बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूअस क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कैस्केड। आप देखेंगे बहुत सारे सेलिब्रिटीज बहुत जल्दी मर जा रहे हैं, जिम के अंदर वर्कआउट करते हुए मर जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेमेटरी कंटिन्यूअस कैस्केड। ये है वजह। इसीलिए एवरीथिंग शुड बी मॉडरेट। संस्कृत में एक कहावत है जिसको कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जित। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सो एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन। एक्सेस ऑफ स्लीप इज बैड, बट लैक ऑफ स्लीप इज ऑल्सो बैड। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को सुधार दें तो किस हद तक हम डिजीज से क्योर हो सकते हैं? If at all a person is able to achieve 100% ideal lifestyle, and by 100% ideal lifestyle I believe
that it to be stress free, with adequate sleep, with good hydration, with adequate nutrition, with adequate work and life balance. I believe that majority of non-communicable diseases, by non-communicable I mean like diabetes, hypertension, heart diseases, such diseases can be nullified to a level with which they will never remain a global health burden again. टुडे वी आर ऑल टेकिंग स्ट्रेस, चाहे वो एग्ज़ाम प्रेशर हो, सोशल प्रेशर या कुछ भी हो, हम सभी स्ट्रेस लेते हैं. तो क्या ये कांस्टेंट स्ट्रेस हमारी लाइफ को, हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है और कैसे कर रहा है? एक तो मैंने आपको कॉर्टिसोल का एग्जांपल दिया था, वो स्ट्रेस है आपका. देन सेकंड स्ट्रेस, अब देखो आपकी बॉडी में एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आपके पूरे क्वेश्चन का शायद ये आंसर दे दे. वो ये है कि हमारी बॉडी में एक एक्सिस होता है जिसे हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस. ठीक है, तो अब आपने बोला स्ट्रेस. स्ट्रेस में क्या होता है कि द गट ब्रेन एक्सिस जो होता है आपका, जो आपके गट के अंदर नर्व के फाइबर्स हैं, ठीक है, जो कि काम करते हैं एक सेकंड ब्रेन का आपकी बॉडी में. ठीक है, तो जब भी स्ट्रेस होता है, आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, लेट मी गिव यू बेटर आंसर. एग्जाम से पहले कुछ बच्चों को डायरिया लग जाता था हमारी क्लास के, कुछ बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती थी, कुछ बच्चों के पेट में दर्द शुरू हो जाता था. आज रिजल्ट अनाउंस हो गया, 2 लोग तो तभी भाग जाते थे, भैया हम जा रहे हैं वॉशरूम. सो दैट इज व्हाट गट ब्रेन एक्सिस डज टू यू. सो ऑल्टर्ड बावल हैबिट्स, जिसको आजकल हम इरिटेबल बावल सिंड्रोम कहते हैं, दैट इज व्हाट स्ट्रेस डज टू यू. एंड आज एक सर्वे आप लेकर देख लीजिए किसी भी कॉलेज में, मेरे ख्याल से कम नहीं तो 40 से 50% बच्चे इरिटेबल बावल सिंड्रोम का शिकार हैं. कुछ लोगों को है लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये वाकई IBS है. दैट इज व्हाट स्ट्रेस डज टू यू. सो ये है स्ट्रेस. अब दोबारा स्ट्रेस के लेते हैं. एक कॉर्टिसोल बताया, दूसरा इरिटेबल बावल सिंड्रोम बताया, तीसरा स्ट्रेस स्लीप रिड्यूस करता है. स्लीप के हम सुन ही चुके हैं बखान. अब चौथा, स्ट्रेस लीड्स टू इंक्रीज सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी. स्ट्रेस के अंदर मान लो आज आपको मैं अभी अनाउंस कर दूं कि कल से आपके एग्जाम स्टार्ट है. ठीक है, आधे तो अभी. अब उसमें क्या होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आपका BP बढ़ेगा. आप क्या करेंगी, आप 2 कप कॉफी और पिएंगी, सारी रात ऑल नाइटर मार मार के आप रटेंगी चीज़ों को, ताकि कल सुबह जाकर हम उसे पेपर में वॉमिट आउट कर सकें. बट होता क्या है, यू एंड अप बीइंग मोर कंफ्यूज्ड दैन यू वर बिफोर. ठीक है, अभी तो परफॉर्मेंस प्रेशर था कि कल जाके परफॉर्म करना, फिर अंडर परफॉर्मेंस प्रेशर होगा. With this vicious cycle of stress continues. सर, इज इट ट्रू कि जो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है ये सिर्फ ओवरवेट पीपल में होती है और जो स्लिम पीपल है उनमें इतनी ज़्यादा नहीं देखी गई? तो क्या स्लिम पीपल आर दे सेफ? ओवरवेट पीपल के अंदर लाइफस्टाइल डिजीजेस बिकॉज ऑफ ओबेसिटी पर से होना नॉर्मल है. हाँ, होती हैं, हो सकती हैं, होती थी, होती हैं, होती रहेंगी जब तक आप नॉर्मल वेट नहीं अचीव कर लेते. बट इट्स नॉट ओनली ओबेसिटी विच लीड्स टू लाइफस्टाइल डिजीजेस. समटाइम्स यू कैन बी स्लिम, you can be in a perfect body shape, but what's going on inside that you don't know. Okay, I'll give you an example. Say for example I am in a perfect shape, I am an actress, ठीक है, मेरी I have achieved 0 size, ठीक है, in which I have cut off my carbs, I have cut off my fats, I am just आजकल बड़ा प्रचलन है कीटो डाइट का, ठीक है, आई एम ओनली ऑन हाई प्रोटीन्स, ठीक है,
अल्टीमेटली क्या हो रहा है? आई एम बीइंग माल नरिश्ड, मेरे को विटामिन नहीं मिल रहे, मुझे मिनरल्स नहीं मिल रहे, ठीक है। और हो क्या रहा है मेरी बॉडी के साथ? कार्ब्स क्या ज़रूरी नहीं है? क्या हो रहा है? कीटोन्स, कीटोन्स अगेन आर रनिंग द शो। कब तक रन कर लेंगे? आप हमेशा नहीं कर सकते, आपको कार्ब्स भी इक्वल मात्रा में चाहिए। इट इज 4-4-9 रूल, यू नीड इट। आपको कार्ब्स चाहिए, आपको प्रोटीन्स चाहिए, आपको फैट्स भी चाहिए इन मॉडरेशन, ठीक है। अभी ओराइजनॉल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अब जाके ये आने शुरू हुए, नहीं तो पहले तो सिर्फ साइज 0 ही चलता था, है ना। तो दिस इज व्हाट डाइट डज टू यू, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब स्लिम अगर कोई है तो उसके अंदर ओबेसिटी रिलेटेड शायद ना हो, बट स्ट्रेस रिलेटेड होंगी, माल न्यूट्रिशन रिलेटेड होंगी, एंग्जाइटी रिलेटेड होंगी। अगर उसकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तब उस वजह से उसे लाइफस्टाइल डिजीजेस होंगी। तो आपको होलिस्टिक अप्रोच लेनी है। सिर्फ आप वेट कम करके बाकी सारी चीजों को अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे, यू आर गोइंग टू गो डाउन द ड्रेन। ये तो स्लिम लोग आर नॉट इम्यून टू लाइफस्टाइल डिजीजेस, दे मे बी इम्यून टू ओबेसिटी रिलेटेड साइड इफेक्ट्स। लाइफस्टाइल अगर आप बात कर रहे हो तो दैट्स नॉट ओनली वेट। Sir, if you could change just 4 things in our lifestyle routine, what would they? Number 1, no screens 2 hours before bedtime. बड़ा मुश्किल साउंड कर रहा है ना? No screens 2 hours before bedtime. Number 2, 3 to 4 liters of water per day. बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और चैलेंज देता हूं। यू नो, हाइड्रेशन, आप हाइड्रेटेड हैं या नहीं हैं उसको देखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? यू सी द कलर ऑफ योर यूरिन, इट शुड बी ऑफ द कलर ऑफ वाटर। जितनी बार आप डार्क ब्राउन, डार्क येलो कलर यूरिन पास कर रहे हो ना, इसका मतलब आपकी किडनीज रो रही हैं अंदर से, भैया पानी दो, पानी दो, पानी दो। दैट इज व्हाई किडनी स्टोन्स आर इंक्रीजिंग। सो नंबर 1, नो स्क्रीन्स 2 hours बिफोर स्लीप, एडिक्वेट वाटर 3 to 4 liters पर डे, ठीक है। एकदम नहीं घटकना है, इट शुड बी इन इक्वल प्रोपोर्शंस, ठीक है। और उसके अंदर कुछ डालो, गर्मियों में नींबू पानी डाल लो, नींबू पानी बना लो भैया, विद वेरी लो सॉल्ट, ठीक है। नींबू पानी बना लो, सर्दियों में सूप्स पी लो, ठीक है, जैसे हम पी रहे हैं, लाइम वाटर विद स्पाइसेस इन इट, ठीक है। मैंने कुछ नहीं डाला इसमें, जस्ट स्पाइसेस एंड लेमन, लिटिल बिट ऑफ हनी, दिस इज वेरी गुड हाइड्रेशन। सो एंड Number 3 is minimum of 7 hours of sleep. Number 4, 30 minutes of moderate physical exercise at least 5 days a week. ये 4 चीजें अगर कोई भी कर ले, I am guaranteeing you the lifestyle diseases risk will be below the threshold level. Sir, you treat so many patients. What's that moment or story when you really feel that young India, now it's time to wake up? There was a medical student to me. Okay, he was my own student in class, topper. Okay, throughout. He was like, I taught him in 3rd year also in medicine. I taught him in 4th year also in medicine, and he was like that I want to become a physician badly. ठीक है सर, बस आप जैसा बनना है। तो मैंने कहा भैया मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, आप अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करें, आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। सो व्हाट आई सी कि जस्ट 2 to 3 months बिफोर हिज एग्जाम्स ही कम्स टू मी कि सर मैं पढ़ रहा हूँ
लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रह रहा है। मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये भी पढ़ दूँ, मैं वो भी पढ़ दूँ, मैं हर कुछ करने की, सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कुछ याद ही नहीं हो रहा है। मैं हर एक चीज़ भूलता जा रहा हूँ। मैं कभी मैं यहाँ तक भूल जाता हूँ कि मुझे अपने बैग में क्या क्या कैरी करना था। मैं अपने कमरे की चाबियाँ कहीं भूल जाता हूँ रख रख के। मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट इज़ रॉन्ग विद माई मेमोरी। फिर मैंने उसे बिठाया, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई तू तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता था क्लास में, तेरे एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, अब बिना मेमोरी के तो कोई नहीं कर सकता एग्जाम में परफॉर्म, तो क्या हुआ तू बता। तो धीरे धीरे करके पता चला कि डॉक्टर साहब का क्या प्लान था कि वो लेट नाइट स्टडी आवर्स लगाते थे। मतलब कि 9 बजे तक वो घूमे फिरे और फिर उसके बाद 9:30 बजे डिनर करने के बाद जनाब बैठ जाते थे और 2 बजे तक पढ़ते थे। 2 बजे जनाब सोते थे, सुबह 7 बजे उठ जाते थे, बिना ब्रेकफास्ट किए 7:30 बजे भाग भाग कर क्लास में होते थे। ठीक है जी। अब क्या हुआ, जो सब कुछ मैंने आपको इस स्टोरी की शुरुआत से बताया। मेमोरी डाउन द ड्रेन बिकॉज ऑफ lack of sleep, increased stress, anxiety, again increased cortisol, reduced REM sleep, no gamma, no delta waves in sleep. Reason? A topper student is sitting before me with short-term memory losses. What is the best health advice you ever heard or received? The best health advice which I received is become what you preach. जो मैं दुनिया को बताता हूँ मैं वो बन। हमारे मेडिसिन प्रोफेशन में क्या होता है, मेडिकल प्रोफेशन में हम लोगों को ट्रीट करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम खुद की हेल्थ को साइड ट्रैक कर देते हैं, जो कि मैंने बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स में देखा है। मैं भी किसी ज़माने में एक मेडिकल स्टूडेंट था, सो आई हैव फेल्ट द बर्ंट ऑफ इट, और लिटरली आई हैव बोर द ब्रंट ऑफ इट ऑल्सो। तो द बेस्ट एडवाइस विच आई रिसीव्ड इज कि जो पढ़ रहे हो उसे अपने ऊपर लागू करो। पहले चैरिटी बिगिंस एट होम फर्स्ट। पहले अपने आप को आप उस शेप में बनाओ कि जिस शेप में आप खुद रहना चाहते हो। आई यूज्ड टू बी अराउंड 96 kgs, और मुझे मेरे अंडर ग्रेजुएशन के अंदर जब मैं MBBS का स्टूडेंट था, मेरे को मेरे घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया था बिकॉज ऑफ माई वेट। मैं अपने ऑर्थोपेडिशियन कंसल्टेंट जो मुझे ऑर्थोपेडिक्स पढ़ाया करते थे, मैं उनके पास गया कहने के लिए कि मेरे भैया घुटनों में दर्द क्यों शुरू हो गया, मैं तो अभी बहुत जवान हूँ, ठीक है, अभी से मेरे घुटनों में। एंड आई वॉज डायग्नोज्ड विद पटेलोमलेशिया बिकॉज ऑफ ओवरवेट। उस दिन ऑर्थोपेडिक्स के उस सर्जन ने मुझे ये बताया था कि जो तुम्हें क्लास में पढ़ाया जाता है पहले वो खुद के ऊपर लागू कर, फिर दुनिया को पढ़ाने लायक बनेगा। वो दिन है और आज का दिन है। आई लॉस्ट 20 kgs ऑफ माई वेट ओवर लास्ट आई थिंक 5 to 6 years, और आई द पेन इन माई नीज इज अ मैटर ऑफ पास्ट नाउ। ये So thank you so much. You describe everything very beautifully. Thank you very much, sir. You're most welcome.